physically here, where we probably had close to 70 odd authors. We had events for the kids, we had competitions, we had author meetups, we had the PVLF Excellence Awards, which is also perhaps the only awards in the Indian literary industry which are unbiased, which are given authentically, and which are given by public voting. So we had all of that yesterday, and then we ended the day yesterday on two highs. First, we had a jamming session by India Music Collective, where there was probably 325 people, which is this auditorium, and there were 20 people standing here, 10 here, 5 there, 5 there. So we must have had 400 people inside, and I had to literally, at the end of it, go in and say, we need to close this, because your time is up. So I had to be the bad guy. Many people appreciated I could come. Most of them abused me, but that's all part of the game. And then we ended the day on the next big high with the show. It was a show based on a Rabindranath Tagore play, a story from Mahabharata called as Chitrangada. It was amazing. I mean, this hall was 100% full last time. It looks like even today, we are nearly 80% full. And of course, there are people trickling in. I said yesterday also, it is Delhi. So we said 11:30 means people will come by 12:30 and 1. And Book My Show, I think, had put 12 o'clock as the time. So, that's why probably the delay from a lot of people, they can be excused for that. But anyway, here we are. We are ready to start the show. Right now, the show that we are doing is called as Naika Bhumika. There is a 30 people troupe that has specifically come from Mumbai for this show. The show is run by the production company called as Indrani Mukherjee Enterprise. I'm so sorry. Indrani Mukherjee Enterprise, which is the company that has produced the show. And it has a brilliant star cast. And this is 4 short stories from Rabindranath Tagore. I won't name all the stories because that's the job of the narrator. I am the person that runs the literature festival. I'm the festival director along with, can you please come on stage so people can see you? You are 4'9", people can't see you from there. Okay. I'm so sorry. This is my colleague, somebody that actually runs this show. I'm just supposed to be the stage prop. Navita Berry. She is the person that runs this entire show, is responsible for the entire success of the Pragati Vichar Literature Festival, including everything. So I think almost everybody here would know her just because of how involved she is with everything. And every time somebody comes and talks to me about something, I have to actually call her and ask, "Iska kya tha?" So, but anyway, I will not take too much of your time because we have a show here that is about to begin. And then later in the afternoon, there is another show in this auditorium, so we need to be quick. We've been told we need to, very graciously, very authentically, very genuinely, but leave on time because there is another show after this. So without further ado, I will turn this over to the team and let's watch the show. हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता Welcome you on this sunny Sunday afternoon, and I promise you an afternoon that you will never forget. Ladies and gentlemen, welcome to Naika Bhumika, presented by Indrani Mukherjee Enterprise. This afternoon, we invite you into Tagore's quieter rooms, the ones he built for women. Rooms where longing does not ask permission, where love
is not polite, and where duty presses hard against desire. In these rooms, women wait, choose, refuse, endure, and sometimes they burn. Nayika Bhumika gathers these women not to retell their stories, but to listen to them without haste and without any judgment. Through movement, नायिका भूमिका में आप सबका स्वागत है। नायिका और भूमिका यानी नायिका की भूमिका। अब यहाँ मैं नायिका की भूमिका का वर्णन करने नहीं बैठी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि हर स्त्री में एक नायिका छिपी होती है। हर स्त्री का मन एक नायिका की तरह हर इच्छा पूरी करना चाहता है, या यूं कह सकते हैं कि नारी एक और उसके रूप अनेक। अब नारी का बचपन देखिए, नटखट, शरारती, इधर उधर उछलती कूदती नारी। वही नारी जब अपनी जवानी की दहलीज पर पांव रखती है तो रूप, सौंदर्य और खूबसूरती से परिपूर्ण हो जाती है। रूप सौंदर्य की एक जीती जागती भूमिका बन जाती है। वही नारी विवाह के पश्चात अर्धांगिनी का रूप लेकर अपने पति की जीवन संगिनी बनती है। और वही नारी जब एक नई सृष्टि का, एक नए शिशु को जन्म देती है तो ममतामयी और वात्सल्य से परिपूर्ण हो जाती है। तब हम उसके अंदर मातृशक्ति को देखते हैं, एक नई भूमिका को देखते हैं, अपने बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा से भरी हुई नारी। उसे अगर हम विस्तार में बताने जाएं तो वक्त बहुत कम पड़ेगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी। नायिका और भूमिका एक ऐसा बंधन है जिसे आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हर भूमिका में नायिका नजर आएगी। और हम ये चेतावनी भी देना चाहूंगी कि नारी को अबला समझने की गलती कभी मत करिएगा। नारी है पूजनीय, नारी है सम्मान की पात्र, और नारी के इन्हीं कई रूप
पुस्तकों को अपनी कलम से निखारा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनकी सोच कल भी आदरणीय थी, आज भी आदरणीय है और सदैव आदरणीय रहेगी। नारी की कहानियां जो उन्होंने तब लिखी थी, यानी कि 20वीं सदी, आज से 100 साल पहले, आज भी वो कहानियां उतनी ही पसंद की जाती हैं और उतनी ही रेलेवेंट है। और उन्हीं कृतियों में से चंद कृतियां हमने चुनी है और हमने बनाई है नायिका भूमिका। तो देखिए और सज्जनों, आइए इसकी एक झलक हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये उपन्यास गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक महान कृति है। ये उपन्यास नायिका विनोदिनी का उपन्यास है। इसकी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कलम की खूबसूरती बताती है। विनोदिनी एक ऐसा किरदार जो अपने नाम के स्वरूप है, जिसको देखकर आपका मन विनोदित हो जाए। ऐसी विनोदिनी, विनोदिनी जिसका रूप आपको बार बार देखने का मन करे, ऐसी विनोदिनी, विनोदिनी जिसके यौवन को पाने का हर एक का मन करे, ऐसी विनोदिनी जो चले तो हिरनी सा एहसास हो, जिससे नजरें मिल जाए तो बस विनोद ही विनोद हो। ऐसे किरदार विनोदिनी का इतना सुंदर वर्णन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस उपन्यास में किया है। तो आइए आपको विनोदिनी की कहानी सुनाते हैं अपनी ज़ुबानी। तो सुनते हैं कहानी चोखेर बाई, जिसकी मुख्य किरदार है हमारी विनोदिनी। सुपुत्री विनोदिनी, रूप, सौंदर्य और यौवन से भरी हुई विनोदिनी। हर कोई अपनी किस्मत में चाहता था विनोदिनी का नाम, पर विनोदिनी की किस्मत में विधाता ने लिखा था कुछ अलग ही पैगाम। विनोदिनी का विवाह एक वृद्ध इंसान से कर दिया जाता है, जिसकी जिंदगी के चंद दिन बचे, और फिर वही होता है जिसका डर था। विनोदिनी कुछ ही दिनों में विधवा हो जाती है। शब्द विधवा है तो बहुत छोटा, लेकिन जिसके साथ होता है, और वो भी आज से 100 साल पहले जिसके साथ हुआ होगा, उसका जीवन तो नर्क के समान हो जाता था। विधवाओं पर कितने प्रतिबंध थे, उनसे अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था, या यूं कहूं कि वो जिंदा तो थी, पर जिंदा लाश बनकर। विनोदिनी भी एक ऐसी ही जिंदगी जी रही थी, पर ऐसे में विनोदिनी को एक और विधवा का साथ मिलता है, राजलक्ष्मी का, जो उसे लेकर कोलकाता चली आती है। आने पर भाग्य ने फिर पलटा खाया। विनोदिनी राजलक्ष्मी के साथ कोलकाता में महेंद्र के घर पहुंचती है। ये वही महेंद्र का घर था जिस घर में विनोदिनी के विवाह का प्रस्ताव आया था, और महेंद्र ने बिना चित्र देखे उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये वही महेंद्र था जिसने विनोदिनी का अपमान किया था। जैसे ही विनोदिनी महेंद्र को देखती है, उसके मन में अपमान और तिरस्कार की भावना जलन और ईर्ष्या के रूप में बदल जाती है।
देखने के बाद महेंद्र के प्रति उसके मन में गुस्सा सा उमड़ पड़ता है। ये भावना उसे महेंद्र से बदला लेने, उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। एक और आशा जो शांत है, खड़ी है, और एक और विनोदिनी है जो इंग्लिश बोलती है, मॉडर्न सोच रखती है, रूप, सौंदर्य और यौवन से भरी हुई है। एक और विधवा होने का दुख और दूसरी ओर महेंद्र को अपनी पत्नी आशा के साथ खुशहाल जिंदगी जीते देखना। वही महेंद्र जिसने उसे ठुकरा दिया था, विनोदिनी को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसमें क्या कमी थी। वो विधवा है, दुखी है। मन ही मन विनोदिनी अपनी इस हालत का दोषी महेंद्र को ठहराती है और उससे बदला लेने का मन बना लेती है। ईर्ष्या, जलन और बदले की भावना के बीच इस कहानी में प्रवेश होता है एक और पात्र का, जो है महेंद्र का मित्र बिहारी। विनोदिनी महेंद्र को जलाने के लिए उसके ही दोस्त बिहारी के साथ अपने संबंध को गहरा करने की कोशिश करती है। वो बिहारी को अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहती है ताकि महेंद्र को जलन महसूस हो। बिहारी, जो अपनी भाभी आशा के लिए पूरी तरह से समर्पित है, उसका आशा के प्रति प्रेम निश्चल और निष्पाप है। वो आशा की हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दूसरी ओर विनोदिनी का संघर्ष, विनोदिनी का प्रेम उसके अंदर कुचला हुआ है। वो बाहर आने के लिए तड़प रहा है, पर क्योंकि वो एक विधवा है, इसलिए वो अपने प्रेम को बाहर नहीं ला सकती। वो अपने मन की सारी भावनाएं आशा के माध्यम से पूरी करवाती है। वो आशा को पूर्ण श्रृंगार, अच्छे वस्त्रों के साथ महेंद्र के पास भेजती है। वो दूर रहकर उनके बीच की कल्पनाओं में खोई रहती है। उनके प्रेम को सोच सोच कर रोमांचित होती है, किंतु अगले क्षण उसे गुस्सा और ईर्ष्या भी होती है। उसके मन में आंतरिक द्वंद्व चल रहा है कि वो इस प्यार को अनुभव करे या धिक्कारे। संक्षेप में विनोदिनी सामाजिक मर्यादाओं और दबी हुई इच्छाओं के कारण भावनात्मक स्थिति में रहती है। लेकिन विनोदिनी ने
आशा के साथ अच्छे बर्ताव का नाटक जारी रखा, भले ही वो ईर्ष्या से भरी हुई थी, क्योंकि वो आशा के पति के करीब रहना चाहते थे। बिहारी के सामने व्यक्त करना शुरू करती है। विनोदिनी के कहने पर आशा बिहारी और महेंद्र को मनाती है कि वो सब एक साथ बगीचे में जाकर पूरा एक दिन बिताएंगे। और जब सब बगीचे में आराम कर रहे होते हैं, इसी मौके का फायदा उठाकर विनोदिनी धीरे धीरे बिहारी के पास जाती है, जो दूर खड़ा होता है। विनोदिनी बिहारी से अपने मन की बातें करती है, अपने प्रेम और मोह का प्रस्ताव बिहारी के सामने रखती है। और ये घटना उस समय घटती है जब महेंद्र पहले से ही विनोदिनी के प्रति आकर्षित हो चुका है। विनोदिनी अपनी दबी हुई भावनाओं को महेंद्र के मित्र बिहारी के सामने प्रकट करती है, जिससे चारों पात्रों के बीच का संबंध और भी जटिल हो जाता है। आइए देखते हैं विनोदिनी के इस प्रस्ताव पर बिहारी की क्या प्रतिक्रिया होती है और कहानी में आगे क्या मोड़ आता है। विनोदिनी को बिहारी के करीब जाता देख वही होता है जो विनोदिनी चाहती थी। महेंद्र विनोदिनी के प्रति अपनी प्रेम भावना को काबू में नहीं रख पाता और विनोदिनी और महेंद्र दोनों करीब आने लगते हैं। उनके बीच रिश्ता गहरा होने लगता है। विनोदिनी के मन में महेंद्र के लिए जो गुस्सा था वो प्रेम में बदलने लगता है। धीरे धीरे महेंद्र विनोदिनी के वश में होने लगता है और दूसरी ओर उतना ही आशा से दूर होने लगता है। प्रेम में बंधकर विनोदिनी अपनी भावनाओं और सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर महेंद्र के साथ एक अंतरंग और अनैतिक संबंध में शामिल हो जाती है, जिससे आशा के साथ महेंद्र का रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है। का प्रेम बढ़ रहा था। दोनों प्रेम संबंध में गहरे होते जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर आशा की स्थिति विपरीत थी। आशा गांव में विरह की अग्नि में झुलस रही थी। हालांकि वो टूटी नहीं थी, बल्कि सशक्त हो रही थी। आशा हारी नहीं थी, बल्कि हालात से लड़ रही थी। उसके अंदर एक नई आशा का जन्म हो रहा था।
सीधी साधी भोली भाली पति के प्रेम के लिए तड़प रही आशा रोते हुए जब अपनी आप बीती बिहारी को सुनाती है, तब बिहारी उसके पति महेंद्र को वापस लाने का वचन देकर वहां से चला जाता है। महेंद्र और विनोदिनी को ढूंढता हुआ बिहारी बनारस की घाट पर पहुंचता है। वहां महेंद्र और विनोदिनी से मिलता है और विनोदिनी को अकेला पाकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। विनोदिनी बिहारी से कहती है, मुझे विवाह की आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे दया की आवश्यकता है, और वैसे भी विधवा कहाँ विवाह कर सकती है। और अंत में ये भी कहती है कि ये विवाह का प्रस्ताव मेरे लिए है या आशा के वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए है। बड़ा दिल रखते हुए विनोदिनी बिहारी को वचन देती है कि जाओ, आज से मैं तुम्हारे दोस्त को मुक्त करती हूँ और उसे तुम्हारी आशा के पास वापस भेजती हूँ। महेंद्र वापस आशा के पास कोलकाता चला जाता है। विनोदिनी ने चाहे कह दिया था कि विधवा कहाँ विवाह कर सकती है, पर तभी बिहारी ने भी ठान लिया था कि वो विनोदिनी से ही विवाह करेगा, और इसीलिए बिहारी अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार करता है। सुबह होते ही बिहारी विनोदिनी के लिए दुल्हन का लिबास लेता है। लाल साड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियां, सिंदूर, ये सब लेकर वो उस नाव की तरफ बढ़ता है जो बनारस की घाट पर विनोदिनी का निवास है। हर्षोल्लास से उसके कदम उस नाव की ओर बड़े प्यार से बढ़ रहे थे। नाव सामने होते हुए भी उसे बहुत दूर लग रही थी। वो तेजी से भागते हुए विनोदिनी के हाथ में वो साड़ी और सिंदूर रखना चाहता था और विनोदिनी के विधवा रूप को एक नया जीवन देना चाहता था। जैसे ही वो नाव के भीतर पहुंचता है तो नाव पूरी तरह खाली दिखाई देती है। वो नाव के चारों कोनों पर नजर घुमाता है। चारों कोने तो अपनी जगह पर मौजूद थे, पर वहां